संसार को, मानव मात्र को ज्ञान देते हैं। वेदों का ज्ञान अनंत है। हम अपनी इन कुछ कक्षाओं में वैदिक गणित से अपना परिचय प्राप्त कर रहे हैं। गुणा करने के लिए हमने मूलतः दो सूत्रों का प्रयोग सीखा है। एक तो दूसरा सूत्र निखिलम नवतः चर्मम दशतः, और तीसरा सूत्र ऊर्ध्व तिरभ्याम। ऊर्ध्व तिरभ्याम पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। तो क्रम से पहला सूत्र क्या है? एकाधिकेन पूर्वेन। दूसरा सूत्र तीसरा सूत्र ऊर्ध्व तिरभ्याम। So we have just exposed ourselves to the application of these three sutras as expounded in our time around quarter century back by Shankaracharya Bharati Krishna Tirth Maharaj. But we find that these methods, the details which Shankaracharya present before us, are available in the ancient work of the ancient mathematicians like Bhaskaracharya and other ancient mathematicians. Shankaracharya's unique contribution is he puts the whole thing in a systematic framework. For example, if you look at the Bhaskaracharya's Leelavati, Bhaskaracharya, while explaining the methods of multiplication in 2.5 stanzas, he gives us 6 different methods of multiplying any number with another number. And right in the introduction he says, any operation of arithmetic can be done kramat or utkramat. You can work from right to left or left to right. And there are 6 distinct methods of multiplying any two numbers given, expounded in Leelavati. Now, when I studied Leelavati, I found the methods of Bhaskaracharya are exactly reproduced by Shankaracharya Bharati Krishna Tirth Maharaj. So I just don't understand when some of my mathematics colleagues do not accept the work of Shankaracharya as an ancient work. I feel this is a fool's cry, I am sorry to say, bluntly my opinion. Now, one of the beautiful things we find in the introductory text, the only text available out of 16 volumes, we are told, were written by Shankaracharya. But then only a rewritten volume which is available to the whole humanity with the name of Vedic mathematics. Shankaracharya tells us that for multiplying numbers closer to the base, वो नंबर, वो संख्याएं जो आधार के पास हैं, उनको प्रयोग करने के लिए कौन सी विधि सबसे सरल रहेगी? निखिलम विधि। ठीक है? लेकिन अगर साधारण नंबर है तो उसके लिए कौन सी विधि ठीक रहेगी? ऊर्ध्व विधि, तीसरे सूत्र पर जो आधारित है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये सूत्र जो शंकराचार्य जी की पुस्तक में मिलते हैं, ये वेद से नहीं है। जो गणित मिलता है वो वैदिक गणित है।
और शंकराचार्य जी स्पष्ट कहते हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि दीज आर कल्ड अप फ्रॉम द वेदास। अब उपसूत्र के रूप में निखिलम मेथड के साथ ही अटैच करके हमने देखा जो पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से उस क्रम में जो हमें उनकी पुस्तक में मिलता है 14वां सूत्र है एक न्यूनेन पूर्वेन। लिख लीजिए, एक न्यूनेन पूर्वेन, one less than the previous one। एक न्यूनेन पूर्वेन, one less than the previous one। एक न्यूनेन पूर्वेन। इस 14वें सूत्र का प्रयोग हमने वैदिक ऊर्ध्व विधि में देखा। एलिमिनेशन प्रोसेस में हमारे पास 4 कॉलम हैं, चारों का जब सरलीकरण हो गया तो पहले कॉलम को छोड़ा, एक न्यूनेन पूर्वेन किया, 3 रह गए। फिर दूसरे कॉलम को छोड़ा, 2 रह गए, एक न्यूनेन पूर्वेन किया। फिर तीनों को छोड़ दिया, एक न्यूनेन पूर्वेन किया, एक कॉलम रह गया। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि इस उपसूत्र के रूप में किसी भी संख्या को यदि आपको ऐसी संख्या से गुना करना हो जिसमें सिर्फ 99 है, 9 के अंक ही हैं, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। आइए हम पहली ट्रांसपेरेंसी देखें। आप लिखिए 19 को 99 से गुना करना है। If I want to multiply any number with a number consisting of only 9s, I can straight away do it using the Ek Nyunen Purven Sutra, which says 1 less than the previous one. The answer of this class of multiplication can be written straight away in one line. मैं 19 को 99 से गुना करना चाहता हूँ। पूर्व संख्या क्या है? 19, ठीक है। इसका एक न्यूनेन क्या होगा? 18। लगता है कुछ थक गए हैं आप, ताजे होके बैठिए। एक न्यूनेन का मतलब है एक कम। 19 से एक कम क्या होगा? 18। So 1 less than 19 is 18। 18 आ गया हमारा आधा उत्तर। आइए ट्रांसपेरेंसी देखें। बाकी के उत्तर के लिए हमें क्या करना है? 99 में से जो दूसरी संख्या है 99, उसमें से 18 ही लेस कर दीजिए। क्या आया? 81। ठीक है। और 19 का एक न्यूनेन किया तो क्या आ गया? 18। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 1881। 1881 is our answer. Let us take another example now with the help of the next slide. Now let us take the example of multiplying 778 with 999. अब 778 से एक कम क्या होगा? 777. 1 less than 778 will be 777, right? So this is half of our answer. और अब 999 में से 777 को लेस कर दीजिए तो क्या आ गया? 222। 9 - 7 किसके बराबर? 2। Let us take another example now of a very big number. लिखिए 3728387। 37, 28, 387। इसको गुना करना है हमें। कितने अंक हैं इसमें? 2, 2, 4 और 6 और एक 7 अंकों की संख्या है ये। इसको हमें 7 अंकों वाली ही 2, 2, 4, 2, 6 और 7 अंकों वाली ही 9 की संख्या से गुना करना है। करिए जल्दी से। अब क्या आया? 3728386। यानी पहले जो हमारे 6 अंक हैं जो के त्यों आ गए?
अंतिम अंक क्या है 7, 7 उसका एक कम किया तो क्या आ गया 6 6। अब दो तरीके हैं, या तो जो संख्या है ये इसके पूरक लिख दो निखिलम सूत्र से, वो लिख पूरा आ जाएगा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 करके करिए। 9 minus 3 is 6, 9 minus 7 is 2, 9 minus 2 is 8, 7, 9 minus 8 is 1, 9 minus 3 is 6, 9 minus 8 is 1, and last from 10. So 10 minus 7 is 3. ठीक है? वंडरफुल। तो ये हमने एक और उपसूत्र देखा। आइए अब हम एक उदाहरण लेते हैं। बहुत बार मैंने आपसे ये कहा कि वैदिक गणित में एक कार्य को करने के लिए बहुत सी संभावनाएं हैं। तो आइए let us take one simple example to see the multiplication by different ways. And we will take a very simple example trying to multiply 89 with 99 only. I want to multiply 89 with 99. अब हम स्लाइड्स की सहायता से we will try to see different methods of working. 89 को 99 से गुना करना है, कौन सा मेथड लगाएंगे? सबसे आसान कौन सा पड़ेगा? निखिलम पड़ेगा या एक न्यूनयन पूर्वेन पड़ेगा? एक न्यूनयन पूर्वेन पड़ेगा। तो वही लगाइए, उत्तर निकालिए। देखिए स्लाइड में देखिए 89 माइनस 1 क्या आया लेफ्ट साइड उत्तर का? 88। ठीक है जी। और 89 का पूरक लिखिए निखिलम से, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। निखिलम नवतः चरमम दशतः। So 9 minus 8 is 1 and last from 10, 10 minus 9 is also 1. So double 8, double 1, that is 8811 is our answer, right? Yes, So this is the easiest method of solving this problem. Now let us see what are the choices with us. I can also solve the same problem by Nikhilm method as you said. Nikhilm method से करिए मल्टीप्लाई। अभी 89 को लिखा हमने, उसके नीचे 99 को लिखा और इनके पूरक निकाले निखिलम विधि के मुताबिक, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो 89 100 से 11 छोटा है, -11 लिख दिया उसके सामने। 99 100 से 1 छोटा है, तो इसलिए इसको 01 सामने लिख दिया। एंड नाउ बाय द निखिलम मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यू जस्ट मल्टीप्लाई द डिविएशंस। तो -11 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 11 आ गया। दिस इज हाफ ऑफ द आंसर। और बाकी हाफ के लिए हमने 89 में -1 जोड़ा तो 88 आ गया। 8811 इज द आंसर। अब हम इसी सवाल को ये डायरेक्ट किया है, पहले नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ऊर्ध्वा विधि से करते हैं, सबसे मुश्किल एज इट इज। ऊर्ध्व तिरकभ्याम, 2 ही अंक हैं, दो अंकों की 2 संख्याएं हैं। पहले ऊर्ध्व गुना करेंगे एक कॉलम का, फिर दोनों को लेकर तिरक करेंगे, फिर एक न्यूनयन करके एक का ऊर्ध्व करेंगे। 3 ही पार्ट होंगे, है ना? अच्छा, तो किधर से करें? क्रमात करें या उत्क्रमात करें? उत्क्रमात करते हैं। चलिए, तो उत्क्रमात में हमने पहला कॉलम लिया, उसमें है ऊपर 9 नीचे भी 9, तो 9 9s are 81. So write down 81. Now we include the second column also crosswise. Crosswise करते हुए 9 into 9 plus 8 into 9. Okay? तो क्या आया? 153. अब पहले कॉलम को छोड़ दें, बाकी क्या बचा? एक कॉलम बचा जिसमें ऊपर 8 है, नीचे 9 है। सो आई मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई वर्टिकली। 9 8 72, ये तीसरा हिस्सा आ गया उत्तर का। अब कैरी को जोड़ दीजिए। 8 जो है वो सेकंड प्लेस पर आ गया, 10th प्लेस पर। गेट्स एडेड टू 3, आई गेट 11
and 11 out of that 1 gets added to 15. So I have 16 to carry. 16 is carried and added to 72. It gives me 88. Answer फिर वही आ गया 8811. ओके Yes, sir. अब इसमें हमने क्या किया है, इस ट्रांसपेरेंसी में हमने कैरी को सेकंड स्टेप भी किया है. ठीक है, अभ्यास के बाद हम सीधे भी कर सकते हैं, जैसा कि अब इस ट्रांसपेरेंसी में हम देखेंगे अगले वाली में. 9 9s are 81, 1 लिखा 8 कैरी. अब 8 को हम सीधा जोड़ेंगे, क्रॉस वाइज जब किया 9 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 9 प्लस 9 कैरी, आई गेट 161. तो 1 आया और 16 कैरी हो गया. अब स्ट्रेट अवे वर्टिकली 9 इंटू 8 इज 72 प्लस 16 ऑफ कैरी गिव्स मी 88. आंसर फिर वही आ गया 8811. मैंने स्ट्रेट अवे कर लिया एक ही लाइन में, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है स्ट्रेट अवे निकालने की कोशिश पहले नहीं करनी, वरना गलती हो जाएगी और भूल हो जाएगी. अब एक और विधि देखें. हम इन दोनों संख्याओं को यदि विनकुलम रूप में परिवर्तित कर दें तो काम कितना आसान हो जाता है, हैं? आइए अगली ट्रांसपेरेंसी देखें. अगली स्लाइड के अंदर हम देखते हैं, हमने जब 89 को विनकुलम रूप में लिखा तो क्या आया, 1 रेखांक 1 रेखांक 1. And similarly 99 is equal to 1 0 रेखांक 1. Now I multiply this 3 by 3 number, that is 1 रेखांक 1 रेखांक 1 with 1 0 1 रेखांक. I straight away get 5 parts of the answer and there is absolutely no carryover. हासिल का सवाल ही बंद हो गया, उड़ गया. हाँ, this difficulty definitely comes in if I am not familiar with the negative digits, if I am not familiar with the vinculum numbers, I may have a difficulty. But that difficulty will go by simple practice. करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान. बहुत सुंदर. ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्रमात करें या उत्क्रमात करें, जैसे भी चाहे करें, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है. यहाँ पर हम बड़े मज़े से चाहे तो क्रमात करें चाहे उत्क्रमात करें. आइए अभी जरा देखें ट्रांसपेरेंसी की सहायता से स्लाइड पर. 1 इंटू 1 वर्टिकली क्या आया, 1. अब दूसरा कॉलम जोड़ दिया 1 1 रेखांक 1 0 और इसको सिंप्लीफाई किया. अर्जुन की तरह से दो ही कॉलम्स को देखिए. लास्ट का कॉलम जिसमें रेखांक 1 है उसको भूल जाइए, वो आपके लिए उसका अस्तित्व ही नहीं है. तो अब क्या है, 1 इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू रेखांक 1. 1 इंटू 0 इज 0, added to 1 into रेखांक 1 which is रेखांक 1, I get only रेखांक 1 at the second place. Now I add the third digit also, and for 3 columns it is vertically and crosswise. Center का vertically और कोने वाले का crosswise. So 1 into रेखांक 1 plus 1 into रेखांक 1 plus रेखांक 1 into 0, and that gives me simply रेखांक 2. अर्जुन की तरह से दो ही कॉलम्स को देखिए. लास्ट का कॉलम जिसमें रेखांक 1 है उसको भूल जाइए, वो आपके लिए उसका अस्तित्व ही नहीं है. तो अब क्या है, 1 इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू रेखांक 1. 1 इंटू 0 इज 0, एडेड टू 1 इंटू रेखांक 1 विच इज रेखांक 1, आई गेट ओनली रेखांक 1 एट द सेकेंड प्लेस. नाउ आई एड द थर्ड डिजिट ऑल्सो, एंड फॉर 3 कॉलम्स इट इज वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज. सेंटर का वर्टिकली और कोने वाले का क्रॉसवाइज. सो 1 इंटू रेखांक 1 प्लस 1 इंटू रेखांक 1 प्लस रेखांक 1 इंटू 0, and that gives me simply रेखांक 2. Now I start the एक न्यूनेन पूर्वेन प्रोसेस. पहले कॉलम को छोड़ दिया और दो कॉलम बचे उनको क्रॉसवाइज किया. क्रॉसवाइज करके हमारे पास आ गया सिर्फ 1. अब दूसरे कॉलम को भी छोड़ दिया, सिर्फ एक कॉलम बचा. ऊर्ध्व वर्टिकली ऑपरेट किया, आई गेट ओनली 1, एंड आई गेट द आंसर एज 1 रेखांक 1 रेखांक 2 1 and 2.
अब विनकुलम रूप है 1 रेखांक 1 रेखांक 2, बाकी के 2 अंकों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। इसका मतलब क्या है? 100 माइनस 12। 100 माइनस 12 किसके बराबर होगा? 88 के। तो आंसर वही आ गया 8811। तो ये चाहे हम क्रमात करें चाहे उत्क्रमात करें, ये दूसरी ट्रांसपेरेंसी में हम उत्क्रमात और क्रमात के रूप में देखते हैं, लेकिन करने का तरीका ही है, देखने में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा देखने वाले को। आइए अगली ट्रांसपेरेंसी देखें। अब हमने विनकुलम रूप में रख के और निखिलम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। खेल बन रहा है या नहीं? एक ही सवाल को कितनी विधियों से कर रहे हैं हम। तो अब एक रेखांक 1 में 100 से कितना बड़ा है? रेखांक 1 है ना? और बड़ा है तो प्लस साइन लगा दिया हमने। और दूसरी संख्या में क्या है? 1 रेखांक 0 रेखांक 1। तो ये कितना बड़ा है 100 से? 0 रेखांक 1। तो अब सिर्फ इनको गुना कीजिए, रेखांक 1 को रेखांक 11 से, तो हमारे पास 11 आ गया। और किसी भी संख्या में दूसरे का अंतराल जोड़ दें। इफ आई ऐड द डिवीजन ऑफ एनी नंबर टू द अदर नंबर, आई गेट 1 रेखांक 2 रेखांक 1, and once again I have my answer 8811. ठीक है? So this is the beauty. हमने ये देखा इस सिंपल से उदाहरण से कि by 7 different methods I can solve the same problem. I can work from right to left, left to right. इसके अलावा मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। हमें ये ट्रांसपेरेंसी देखकर, इसको उदाहरण को देखने के बाद ये गलतफहमी हो सकती है कि दिस इज द वे एंड वी विल, इफ वी वर्क इन रेखांक वी हैव टू फर्स्ट गेट द आंसर इन रेखांक एंड देन ओनली वी कैन नॉर्मलाइज इट। दिस इज रॉन्ग, प्लीज टेक इट फ्रॉम मी। अभ्यास के बाद आप सीधे ही पूरा उत्तर पॉजिटिव डिजिट्स में भी निकाल सकते हैं। सो वी कंक्लूड बाय सेइंग Vedic maths is maths which is playful. Vedic maths is maths with smiles. Vedic maths is maths with smiles and playful.